should not go back upon it because there is opposition. We should go ahead boldly and inculcate the surgical skills in the Ayurvedic physicians, Ayurvedic doctors also. This branch should be taken up, not only just doing Char Sutra and some small procedures, but as it was done in the past, the different surgical skills should also be given to our Ayurvedic doctors. It can develop as a specialty also, and plastic surgery as a specialty, which was prevalent in the days of Sushruta, can also be again brought forth into the Ayurvedic teaching. So my professor, Dr. Prasadra, used to say, surgery is the skill of surgery, is the art of surgery joined to medicine. So it's not just, it's away from medicine, but it is medicine plus the art of surgery. When both are combined together, it becomes a surgical science. So Sushruta was a combination of both these things. That is, he was not only proficient in the medical knowledge of Ayurveda, but he had the proficiency in the surgical art. So he described so many surgical instruments, described the surgical procedures, and not only just the simple different surgeries, but complicated surgeries like cesarean section, removal of stone from the bladder, brain surgery. They're all supposed to be prevalent in the days of Sushruta, in the days of Buddha. So they have been described, but they have all disappeared from our Ayurvedic literature. Maybe they were stolen, maybe they were destroyed, but unfortunately, Ayurveda became deficient in the surgical procedures. Now the time has come when we can again inculcate the surgical skills to our Ayurvedic doctors, and they can again bring back the name that we had in the surgery of plastic surgery. It is said in our in the history of medicine that this rhinoplasty, the repair of nose, was so much prevalent in 17th, 18th centuries that it was taken by a colonel in the army. He noted down all the details of what the surgeon used to do, Ayurvedic surgeon used to do in making the rhinoplasty or repair of the injured nose. And this he presented in the Royal College of Surgeons. And this is how the surgeons in India, the doctors in India, the Ayurvedic doctors in India are practicing rhinoplasty, raising a flay from the forehead and repairing. That's how rhinoplasty is included in the surgical curriculum of the Royal College of Surgeons. So such is our history of Ayurvedic plastic surgery in the past. Now it is now the domain of the Ayurvedic physicians, Ayurvedic doctors, Ayurvedic Chandachikitsak to start teaching the art of surgery to the Ayurvedic doctors. Not only at the degree level, but at the postgraduate level, they should do a lot of research, if possible, and revive what has been lost through the maybe it was taken to different countries, and they say that it was Germany, Max Muller, who took away most of the knowledge from here. That was all detailed in Sanskrit literature. So it is incumbent upon the surgical professors of Ayurveda to to include what is there in the modern surgery, to be a part of the teaching of the Ayurvedic curriculum and revive not only the general surgery, but also revival of plastic surgery through Ayurveda should also be done.
my experience in plastic surgery has been very limited. Being a general surgeon, I had to cater to all the needs from head to foot in different parts, excepting the brain, heart, and the lungs. So all the other things I have dabbed into the surgical fields, and plastic surgery is one of them. My lot of experience has been in the field of plastic surgery through the skin grafting. So I used to do a lot of skin grafting for the patients who came with burns. And when third degree burns were there, when they became clean, I could do a lot of skin graftings. And skin grafting is one of the main domain of the plastic surgeons. But I also did some repairs, like repair of hypospadias. That is, when the normal urethral opening is not in the normal place, but it's in the lower part of the penis. So hypospadias repair, I did 2 or 3, and one was successful, one was half successful, and he had to go for a third procedure because even in plastic surgery also, hypospadias cannot be repaired in one stage. It has to be 1, 2, or 3 stages. So I have done the hypospadias repair also. And the third thing was the tuboplasty in gynec surgery. All of you know that as a procedure of population control, tubal surgery, tubal ligations, tubal surgery was very common. And unfortunately, some people in remote villages, they used to lose whatever 1 or 2 children they had, and they came to me for repair of the ligated and excised tubal uterine tubes. So in 3 cases, I did tuboplasty because I went for a training of tuboplasty to Mumbai and learned something of this. And using 4060 Vicryl and also catguts, I did repair of all silk also. I did repair of tubal tubes. And in out of 3, 2 people again conceived. So now this tuboplasty is also one of the necessities of plastic domain of plastic surgeons now. So release of contractures and also repairing through skin grafting. That was a few cases I did. This was my limited experience in plastic surgery. Now I feel that all these things, all these specialties can be again taught to the Ayurvedic students. And as a specialty, the Sandhana Chikitsa Sandhana Shalya Chikitsa can be a part of the teaching of postgraduate teaching in Ayurveda. I feel that some research has also to be done. And in my little surgical practice, I have found use of honey for repair and healing of surgical wounds gave me very good results. So I feel that in use of honey, in doing skin grafting also, if honey is smeared on the wound before doing a surgical skin grafting, it should be really very successful and very useful for making the grafts to be taken in the surgical procedures, in the skin grafting procedures. So you are all experts here in this field who are in this seminar. I again thank all the promoters of this seminar for calling me a basic general surgeon to this field of plastic surgery in Ayurveda, the discussions that I'm there. And I am happy that I am a part of this to learn from all of you the procedures that could be done, the learning that you are going to promote, the through Ayurveda, promotion of surgery, promotion of plastic surgery. I'm sure in the coming days, India will take a lead in this field also. Thank you very much.
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राघवेंद्र कुलकर्णी जी। आपको मैं महर्षि मानता हूं और आपने हमारे भारतीय गौरवशाली परंपरा के इतिहास के साथ रखते हुए उसको प्रत्यक्ष कर्माभ्यास के द्वारा सिद्ध किया और उसका अनुसरण भी किया। तो आप जैसे थिंक टैंक के रहते हुए निश्चित रूप से ये रिवाइवल आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स के लिए जरूर होगा। और आपने बहुत अच्छी चीजें सामने उद्बोधन दिया कि सुश्रुत जो है एक प्रत्यक्ष कर्माभ्यासी भी थे। सुश्रुत में केवल ज्ञान थ्योरेटिकल नहीं था, he was having the practical experience. That's why he was doing rhinoplasty, कर्ण संधान, नासा संधान और अष्टविध शस्त्र कर्म जो बताए गए हैं सर, उन अष्टविध शस्त्र कर्मों में आज की सर्जरी की सारी अप्रोचेज आ जाती। तो लेकिन हम केवल गौरवशाली परंपरा को लेकर के न रह जाएं, आज के परिवेश में हमको आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज हमारा शास्त्र ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो हमको आगे बढ़ने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लेना चाहिए और सीखने के लिए हर शास्त्र से हमें सीखना चाहिए, बिकॉज ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज गॉट इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस। दैट्स व्हाई वी मस्ट फॉलो ऑल दीज थिंग्स। और इसी शब्दों के साथ आपने बहुत अच्छा हम लोगों को जागरूकता प्रकट करने के लिए उद्बोधन दिया और मेरे आमंत्रण पे आप उपस्थित हुए। मैं आपके चरणों में पुनः सादर प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करूंगा और मैं स्वागत करता हूं हमारे साथ डॉक्टर राजकिशोर अग्रवाल जी। ही इज आल्सो ए वेरी पॉपुलर जनरल सर्जन ऑफ इलाहाबाद और आप इस समय पूना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीर्थाटन पर हैं, घूम रहे हैं परिवार के साथ, लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूं अपने मित्रों को। मैं सोचता हूं ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, कहीं भी हो, तो आप आज पुणे से मेरे साथ जुड़े हुए, मैं बहुत आपका अभिवादन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं साथ में जुड़ने के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर मोहित जैन सर को, किसी अन्य कार्यक्रम में भी जाना है तो मैं निवेदन करूंगा कि प्रोफेसर मोहित जैन सर एक बेसिकली इलाहाबाद में एक प्लास्टिक सर्जन के रूप में पॉपुलर है और आपकी ख्याति बहुत दूर दूर तक है। बाहर से लोग आकर के हमसे रिकमेंडेशन कराते हैं कि आप एक बार जो है जैन सर से कह दीजिए, तो जैन सर व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के हर रोगी को बड़े मनोयोग के साथ देखते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आपका अभिवादन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप अपने ज्ञान के आलोक से हमारे इस कार्यक्रम को आलोकित करने का कष्ट करें। तो आप आए और कृपया अपने शब्दों से हम लोगों को अनुसृत करें। डॉक्टर मोहित जैन सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तोमर। पता नहीं आपने जितने अच्छे शब्द मेरे लिए बोले मैं उस काबिल हूं कि नहीं, बट मैं आपका धन्यवाद करता हूं। साथ ही आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कुलकर्णी सर और बाकी डॉक्टर अवनीश, डॉक्टर शांति चौधरी, डॉक्टर राजकिशोर अग्रवाल, सभी को मैं अभिनंदन, सभी को मेरा। और आज विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस है, उन सभी के इस विशेष दिवस की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर कुलकर्णी सर ने सारी हिस्ट्री इतनी डिटेल में पहले ही बता दी है, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि महर्षि सुश्रुत की धरती पे हमने जन्म लिया, इसका हमें बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए। महर्षि सुश्रुत, जिनको हम फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फादर ऑफ, मुझे लगता है कि उनको इंडिया में फादर ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन हमको बोलना चाहिए, क्योंकि जिस एरा में महर्षि सुश्रुत ने ऐसे काम करके दिखाए, वो हम आज तक 2500 साल बाद भी वो प्रोसीजर्स आज भी हम कर रहे हैं। यही दर्शाता है कि उस समय उनकी जो दूरदृष्टि थी, जो उनका स्किल लेवल था, वो इतना हाई था कि वो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। और बात प्लास्टिक सर्जरी की, तो जब मैंने काम शुरू किया तो सारे पेशेंट मेरे जितने भी थे सब, डॉक्टर साहब कौन सा प्लास्टिक लगाएंगे, कौन सा प्लास्टिक लगाएंगे। तो ये जो मिसकंसेप्शन सोसाइटी में उस समय, जब मैंने 20 साल पहले काम शुरू किया, तो मैं देखा कि ये प्लास्टिक सर्जरी के बारे में इतना मिसकंसेप्शन है समाज में। तो मैंने शुरुआत कहाँ से की ये मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स का लेक्चर लेना जब मैंने शुरू किया, तो सबसे पहले लेक्चर की पहली लाइन में यही बताता था कि पहले ये समझो कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब क्या होता है। तो जैसा डॉक्टर कुलकर्णी सर ने भी बोला था कि प्लास्टिकॉस ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है मोल्ड करना, मतलब आकार देना। हम प्लास्टिक सर्जन क्या करते हैं, हम आकार देते हैं। अब प्लास्टिक सर्जरी आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो वो क्लियर कट दो भागों में डिवाइडेड है। एक जिसको हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं, दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो
जैसे हमारा शहर है वहां पे उतनी प्रचलित नहीं है जितनी कि मेट्रो सिटीज में है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई की बात करेंगे तो वहाँ प्लास्टिक सर्जरी ज्यादा एडवांस्ड है। प्लास्टिक सर्जरी उनको जरूरत पड़ती है जो नॉर्मल है लेकिन नॉर्मल से ज्यादा अच्छा दिखना चाहते हैं, वो कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जाते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो हमारा मेन काम है, हम जैसे प्रयागराज में जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए ज्यादा आ रहे हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की हम शुरुआत अगर करें तो जितने भी लोग हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं सभी की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हेड टू टो सर्जन जो है वो अकेला एक प्लास्टिक सर्जन ही होता है, सुपर स्पेशलिस्ट की बात करें तो। बाकी सबका एरिया स्पेसिफाइड रहता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जन मतलब सर से लेकर के पैर की उंगलियों तक का कहीं का भी इलाज करता है। तो अब इसको भी हम अगर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी को देखें तो छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि जन्मजात विकृतियां होती है। क्लेफ्ट लिप पैलेट सभी जानते हैं, सभी ने देखा है। क्लेफ्ट लिप पैलेट को ठीक करने के लिए कई कार्यक्रम विश्व भर में चल रहे हैं, जिसमें स्माइल ट्रेन एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुफ्त में इलाज कराती है इन बच्चों का, और लाखों बच्चे इस योजना का लाभ उठा चुके हैं आज तक। बाकी हाथ और पैर में जन्मजात विकृतियां होती हैं। इसके बाद हम देखें तो एक्सीडेंट से रिलेटेड चेहरे के फ्रैक्चर हो गए, पैर में घाव हो गया एक्सीडेंट के बाद, और भी हाथ में बड़ा घाव हो गया, कहीं पे बर्न, उसके बाद जो है वो हमारा एक मेजर खास करके गवर्नमेंट सेटअप में बर्न पेशेंट का ट्रीटमेंट हमारा एक मेजर रोल रहता है बर्न पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में। बर्न इंजरी भी हम देखते हैं कि जलने की वजह से या फिर एसिड की वजह से, और या फिर आजकल हम देख रहे हैं कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी 11,000 वोल्ट करंट से जो होती है वो पेशेंट हमारे पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो हमको भी मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा अगर इलेक्ट्रिकल बर्न इंजरी हाई वोल्टेज मतलब 11,000 वोल्ट के अगर पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं तो हमको भी गवर्नमेंट लेवल पे इसकी कोशिश करनी चाहिए कि आम जनता जो है इतने हाई टेंशन वायर के संपर्क में ना आने पाए। इसके बाद कैंसर से रिलेटेड भी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। मुंह का कैंसर हम लोगों के एरिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, गुटखा और पान मसाला खाने की आदत की वजह से। तो उसके जो कैंसर सर्जन कैंसर वाला पार्ट निकाल देते हैं, तो उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट रहता है वो प्लास्टिक सर्जन करते हैं। वो भी हमारा एक मेजर रोल प्ले कर रहा है इस समय। और एक जो सबसे रिसेंट एडवांसमेंट है प्लास्टिक सर्जरी में रिकंस्ट्रक्शन में वो है माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी। अब आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि कटा हुआ हाथ या पैर जो है वो दोबारा से प्लास्टिक सर्जन ने माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी के जरिए तो जोड़ दिया। ये काफी वर्षों से चला आ रहा है, हम लोग भी प्रयागराज में भी ये काम काफी वर्षों से हो रहा है। इसके बाद माइक्रोवेस्कुलर फ्लैप सर्जरी भी अब होने लग गई है, जिसमें कि कहीं पे किसी शरीर के हिस्से में अगर बड़ा घाव है और वहां पे हमको कहीं दूसरे एरिया से निकाल के मांस लगाना है, तो हम अब उसको माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी के बल पे करते हैं, जिसमें कि हम उस दूसरे भाग से आर्टरी और वेन के साथ में उतनी बड़ी टिश्यू ब्लॉक निकाल के और फिर जहां पे लगाना है वहां पे रख के फिर आर्टरी और वेन को वहां की आर्टरी और वेन से जोड़ देते हैं, जिससे उसकी ब्लड सप्लाई दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो ये माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी लंबा प्रोसीजर होता है। इसके लिए हम सभी काफी लंबी ट्रेनिंग लेके और हम लोगों ने काफी सालों से ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब जहां तक मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का सवाल है, तो यहाँ पे आप कुछ लोगों को पता भी होगा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक अब हमारा स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे 8 विभिन्न सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी स्टार्ट हो गए, जिनमें एक प्लास्टिक सर्जरी है। तो इसमें सरकार की तरफ से हम लोगों को काफी मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो अब हमारा जो सर्जरी का लेवल है और जो हमको उपलब्ध सुविधाएं हैं वो अब कई गुना बेहतर हो चुकी हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा अच्छा प्लास्टिक सर्जरी का कार्य कर पा रहे हैं। साथ ही एक बर्न यूनिट जो अब ऑलमोस्ट बन के कंप्लीट है, वो उसकी हमारे कॉलेज को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि अभी तक हमारा जो बर्न वार्ड था वो वाकई में नाकाफी था। एकदम किसी हालत में वो बर्न पेशेंट के इलाज करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं था। तो अब अल्ट्रा मॉडर्न एक बर्न यूनिट भी हमारी बन गई है, और एक प्रपोजल जो हमने अभी सरकार के पास भेजा हुआ है उसी बर्न यूनिट में स्किन बैंक बनाने का।
स्किन बैंक के बारे में भी सबको मैं थोड़ा सा अवेयर करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई स्किन बैंक अवेलेबल नहीं है। जैसा हमारा ट्रांसप्लांट बाकी ऑर्गन्स का होता है, किडनी का और आई का, कॉर्निया का, हार्ट का, तो उसी तरह से हम एक स्किन बैंक, ब्लड बैंक की तरह बना के उसमें स्किन स्टोर करके रख सकते हैं। स्किन देने वाले डोनर्स जो होते हैं, जैसे आई डोनेट करते हैं लोग डेथ के बाद, वैसे ही स्किन भी डोनेट कर सकते हैं। तो स्किन डोनेट करने के लिए जो तैयार हो, उससे हम लोग स्किन निकाल के और बैंक में स्टोर कर लेते हैं, जो बर्न पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के काम आती है, जिनका 3rd डिग्री बर्न हो, जैसा डॉक्टर कुलकर्णी बता रहे थे कि उनमें ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो स्किन बैंक से निकाली हुई स्किन जो है वो टेम्परेरी कवर के तौर पे लाइफ सेविंग प्रोसीजर ये होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में हमारा मेडिकल कॉलेज जो है वो पहला होगा जहाँ पे कि ये स्किन बैंक स्थापित होगा। तो ये हमारे लिए एक फ्यूचर का एंडीवर है और प्लास्टिक सर्जरी के एडवांसमेंट के लिए, जो कि हम जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अलावा तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि वी आर हेल्पिंग पीपल टू लिव अ बेटर लाइफ। किसी का हाथ कट गया, हमने हाथ जोड़ दिया, किसी को कैंसर हो गया, हमने उसका कैंसर का रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। बर्न पेशेंट्स आए हमारे पास, हमने उनकी जान बचाने में भी मदद की, और उसके बाद हाथ में कॉन्ट्रैक्चर्स हुए, पैर में, गर्दन में कॉन्ट्रैक्चर हुआ, हमने उसको ठीक किया। वी आर हेल्पिंग पेशेंट्स टू लीड अ बेटर लाइफ, कि वो अपनी पूरी तरह से नॉर्मल जिंदगी जी सकें। यही एक प्लास्टिक सर्जन का उद्देश्य होता है, और इसी राह पे हम लोग चल रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी, कैसे भी पेशेंट्स हमारे पास आए, हम सबकी मदद करें। और इस प्लास्टिक सर्जरी डे पे आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और इस संगोष्ठी में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और सभी का अभिनंदन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित, और जो भी आपने बताया कि प्रदेश का पहला ये मेडिकल कॉलेज होगा, निश्चित ही बहुत ही गर्व की बात है हम सभी के लिए। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, मैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी लोग, देश के विभिन्न कोने से जुड़े हुए। डॉक्टर अतुल वासरने सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप आरोग्य भारती ब्रज प्रांत के सचिव हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही आरोग्य भारती काशी प्रांत के संगठन सचिव डॉक्टर अजय मिश्रा जी भाई साहब जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहन दीप्ति जी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। डॉक्टर सुदीप तिवारी जुड़े हुए हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं आप भी। डॉक्टर ज्वाला प्रसाद सर गोरखपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप सभी सम्मानित जनों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर शिवजी गुप्ता सर, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है शल्य विभाग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, IMS BHU। सर आपसे मैं निवेदन करूंगा, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। डॉक्टर शिवजी गुप्ता सर। सभी विद्वत जनों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राघवेंद्र कुलकर्णी जी, जो मुख्य संरक्षक आरोग्य भारती के हैं। हमारे गुरुतुल्य प्रोफेसर डॉक्टर गिरेन सिंह तोमर सर, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरोग्य भारती के हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहित जैन, जिनका अभी वक्तव्य हम लोगों ने सुना, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के। और अन्य वक्ता डॉक्टर राजकिशोर अग्रवाल जी, डॉक्टर शांति चौधरी जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अवनीश पांडे जी। सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी हूं इस विशेष मंच का, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपने विचारों को आपके सम्मुख रख सकूं। जैसा कि आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राघवेंद्र कुलकर्णी सर ने बहुत ही व्यवस्थित रूप से हमारे भारतीय इतिहास को, उसकी गौरव गाथा को, जो शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में रही है, उन्होंने उद्धृत किया, और सुश्रुत के योगदानों को जो उन्होंने जो विशेष रूप से जो है वर्णित किया। स्पेशली जो प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में महर्षि सुश्रुत का योगदान है, जिसके आधार पर उनको फादर्स ऑफ द प्लास्टिक सर्जन कहा जाता है। इस विशेष योगदान के लिए ही उन्हें यह
उपाधि दी गई है। जहां तक प्लास्टिक सर्जरी का आयुर्वेद से संबंध है, वो हम उसका वर्णन संधान कर्म के अंतर्गत विशेष वर्णन मिलता है। और संधान कर्म का अगर देखा जाए तो कई रूप में प्रयोग हुआ है आयुर्वेद की उसमें। ये वुंड मैनेजमेंट में भी आता है संधान कर्म, हेमरेज जो रक्तस्राव होता है उसके संदर्भ में भी संधान कर्म की बात आई है, भग्न की चिकित्सा जो फ्रैक्चर मैनेजमेंट है वहां भी संधान कर्म का जो है संधान वर्ड का जो है प्रयोग हुआ है। लेकिन जो संधान कर्म की बात करते हैं वो विशेषतः जो है रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी जो आज के आधुनिक युग में हमें जिस वर्णित है उसके संदर्भ में इसका वर्णन मिलता है। जहां तक वेदों का संबंध है, वेदों में रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी से संबंधित बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। हमारे मुख्य अतिथि कुलकर्णी सर ने भगवान गणेश के बारे में जो बताया वो हेट्रोजीनस ट्रांसप्लांटेशन का जो है हेड ट्रांसप्लांट का जो है एक उदाहरण है। और हम जब वेदों की तरफ देखते हैं तो अश्वनी कुमार के जो योगदान है रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में वो बहुत बड़ा मिलता है। चाहे वो विश्वला का जो है लेग ट्रांसप्लांट हो या ऋषि अतिदेव का जो है उन्होंने जो है बॉडी के जो है कुछ पार्ट जो है उन्होंने जो है रिकॉन्स्ट्रक्ट किया। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण वेदों में जो है अश्वनी कुमार के संदर्भ में मिलते हैं। जहां तक उसकी बात करें हम रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का, तो जो सुश्रुत ने जो सिद्धांत दिया वो संधान कर्म का, वो विशेषतः 3 प्रकार के संधान कर्म का जो है उन्होंने जो है वर्णन किया है। राइनोप्लास्टी जिसको हम रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द नोज, लोबुलोप्लास्टी जो रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द ईयर लोब्यूल, और उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स उन्होंने जो है बताए हैं। चेलोप्लास्टी जो लिप रिकॉन्स्ट्रक्शन का, ये 3 जो प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो डिटेल में जो है सुश्रुत संहिता में मिलते हैं। लेकिन हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि जब पूरा विश्व अभी शल्य चिकित्सा में उसकी उतनी पहुंच नहीं थी, उस युग में भी महर्षि सुश्रुत ने इस विधा को जो है पूर्ण रूप से जो है वर्णित किया। और उसके सिद्धांतों को अगर हम देखें तो ये लगता है कि उस समय भी काफी विकसित था। क्यों हम इसको विकसित कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जो आचार्य सुश्रुत ने दिए हैं, चाहे वो उसके जो प्रोग्नोसिस हो, चाहे पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट के संदर्भ में हो, वो सब आज सिद्धांततः आज भी वही उसी रूप में प्रतिपादित होते हैं। जैसे उन्होंने जो एक रोटेशनल फ्लैप का जो कॉन्सेप्ट दिया, एक सूत्र रूप में उन्होंने दिया, गंडा पाठ मानसीन सान वंधेन जीविता कर्ण पालिम पालिस्तु पुराणलिक शास्त्रविद। ये एक हमारे बॉडी टिश्यू को ही हम कैसे रिकॉन्स्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, उसको लाइव मेंटेन कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। उस युग को अगर देखें, आज से हजारों वर्ष पूर्व, कई हजार वर्ष पूर्व, ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व जो है सुश्रुत का सिद्धांत वो संहिता का जो है वो हम काल मानते हैं। उस युग में इस तरह के कॉन्सेप्ट को रखना यह दर्शाता है कि जो भी काल रहा होगा, हमारी शल्य चिकित्सा अपनी चरमोत्कर्ष पर रही थी भारतवर्ष में, कि हम अपने बॉडी टिश्यू को ही कैसे, जो लाइव टिश्यू है उसको हम रिकॉन्स्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो उन्होंने जो 3 सिद्धांत दिए, जो उन्होंने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए स्पेशली फॉर द कंट्रा इंडिकेशन ऑफ द रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का, वो है न च अशुद्ध रक्तम, अति प्रवृत्त रक्तम, क्षीण रक्तम व संध्यात। इन these the 3 condition where the reconstruction or the sandhan or is not taken place, especially if the blood is contaminated, that means the अशुद्ध रक्त। उन्होंने अपने संस्कृत के शब्दों में किया, लेकिन अगर हम उसको वैज्ञानिक रूप से देखें तो उसके पीछे वैज्ञानिकता है।
Ashuddha Rakta means that is the contaminated blood. If the blood is contaminated by any means, the reconstruction or whatever the flap you have to construct, it should not be survived. The another is the atirak. Atirak, that means that if there is excessive oozing or hemorrhage taken place at the site of the reconstruction or at the site of the skin grafting, also the skin graft not taken place. This is the basic fundamental principles given by the Sushrut. And the another third factor is the Heenrak. If the blood supply is not adequate to the part which you have to reconstruct, the reconstruction may be failed. So these three fundamental principles are indicated that these are the whatever the Sushrut given, उस समय जो भी सुश्रुत ने दिया वो उन लोगों का प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, सिद्धांतिक पक्ष बहुत ही मजबूत था और उन्होंने ये पेशेंट्स के ऊपर कर कर देखे होंगे, तब इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया होगा। पोस्ट ऑपरेटिव जो मैनेजमेंट में भी उन्होंने जो बताया कि कैसे बचना चाहिए, किन किन चीजों से बचना चाहिए, विघट्टनम दिवा स्वप्नम व्यायाम अति भोजनम व्यायाम अग्निसंताप वाक्श्रमश्च विवर्जेत, ये सिद्धांत सुश्रुत ने दिया कि आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हमें इन चीजों से डे स्लीप, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव फूड इंटेक, एक्सरसाइज एंड वाक्श्रम, एक्सेसिव टॉक, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। एक तरीके से कंप्लीट बॉडी रेस्ट में रखना चाहिए, अदरवाइज जो रिकंस्ट्रक्शन किया है वो उसके फेलियर होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो देखें, मूल रूप से अगर हम देखें तो यह पाते हैं कि जो सिद्धांत जो आज से हजारों वर्ष पूर्व दिए गए हैं, हमें उसको वही सिद्धांत आज भी हम अडॉप्ट करते हैं। हाँ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी साइंस डेफिनेटली अपग्रेड हुई है और एडवांस हुई है, जिसका हम यूटिलाइज आज के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, लेकिन मौलिक जो सिद्धांत हैं वो आज भी सुश्रुत के जीवित हैं। तो ये एक मौलिकता सिद्ध करती है कि हमें बहुत जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनको अपनी गौरव गाथा को बताना है, साथ ही हमें यह भी बताना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो वो सिद्धांत है उनको हम किस दृष्टि से देख सकते हैं। जब तक हम उसको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान या जो प्रेजेंट कंटेम्परेरी साइंस है उसके सापेक्ष में हम उसको नहीं अगर उनको समझाएंगे, तब तक वो चीजें विद्यार्थियों तक, जो आने वाली पीढ़ियों तक वो नहीं पहुंच पाए। और ये भार हम सभी जो इस क्षेत्र के जो गुरुजन हैं, जो शिक्षक हैं, उनका एक विशेष दायित्व है कि उन चीजों को छात्रों में हमें यह प्रोपोगेट करना है, जिससे उसको जो है पुनः स्थापित या पुनर्जीवित या उसको आगे बढ़ाया जा सके। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली हमारे गुरुतुल्य प्रोफेसर गिरेन सिंह तोमर सर को, जिन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया और अपने संक्षिप्त रूप में अपने वक्तव्य को आपके सम्मुख रखने का मौका दिया। सभी जो इस कार्यक्रम से जुड़े लोग हैं उनको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शिवजी गुप्ता जी। आप निश्चित रूप से उस गरिमामय स्थान पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि हमारी सुश्रुत की एक कर्मस्थली है, जहां ऐसे सर्जन को जन्म दिया प्रोफेसर पीजे देशपांडे सर, जिनको के आज पूरा विश्व जो है उनके कृतित्व और कर्तृत्व के लिए जानता है, और आज उसी पीठ में आप विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आचार्य कुलकर्णी जी द्वारा दिए गए संदेश को वर्तमान परिदृश्य में आयुर्वेद की सर्जरी को रिवाइव करके आज पुनः मुख्य धारा में हमें जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची सफलता होगी आज के इस कार्यक्रम की। तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतिहास को ही नहीं, आपने पूरी तरीके से, आज मैं देख रहा हूं कि पूर्वांचल के बहुत रोगियों की एक बहुत बड़े क्राउड को आप किस तरह से मैनेज करते हैं। यही गरिमा काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कर्मस्थली में रह करके, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति की सेवा, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता। चिकित्साद पुण्यतमं न किंचित। और आरोग्य भारती इसी मूल धारा को लेकर चलती है कि संपूर्ण विश्व को हम जागरूक करें
कि हेल्थ इज नॉट हिज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवर हेल्थ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत अच्छी बात है, हम अपने इतिहास को जाने और वर्तमान परिदृश्य को भी जाने। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आपने अपने व्यस्त और समय में से समय निकाला और एक का अपना उद्बोधन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा अवनीश जी को कि हमारे इलाहाबाद के बड़े लोकप्रिय जनरल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर अग्रवाल जी, जो कि पूना में है, मैं जानता हूं कि व्यवधान होगा कनेक्शन वगैरह में, उसके बावजूद भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत अनुभव हम लोगों के बीच में साझा करने का कष्ट करें। डॉक्टर राजकिशोर अग्रवाल जी को आमंत्रित करें। डॉक्टर अवनीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पहले कि मैं सर को सादर आमंत्रित करूं, मैं बताना चाहता हूं कि एबीसी फाउंडेशन ऑफ इंडिया आयुर्वेदा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया आयुर्वेदा बेसिक कॉन्सेप्ट फाउंडेशन है, जो कि प्रतिदिन यहाँ पे फेसबुक इनके पेज पे स्वास्थ्य संबंधित जानकारी जो है लाइव की जाती है। और आज भी इस कार्यक्रम के बाद 8:30 बजे से कार्यक्रम प्रतिदिन इनका लाइव चलता रहता है। जो लोग भी ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ना चाहें, इनके फेसबुक पेज को आप लाइक करके फॉलो करके उनसे जुड़ सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा डॉक्टर आर.के. अग्रवाल सर से कि सर आए और अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। आप मां शारदा हॉस्पिटल प्रयागराज के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार भाई, और धन्यवाद अवनीश जी, हमको आपने इस कार्यक्रम में अपना आमंत्रण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कुलकर्णी सर, डॉक्टर तोमर सर, डॉक्टर शिव कुमार सर, शांति चौधरी मैम को नमस्कार करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और मैं अपने छोटे भाई मोहित जैन जी को भी, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर थे, क्योंकि हमारा खुद का एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें हमारे चेहरे पे और हमारे हाथों की उंगलियों में काफी चोट आई थी। उंगली जैसा कि आप पता है कि ये प्लास्टिक सर्जरी का मिसनॉमर है। एक्चुअल में वास्तव में ये रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी है। कॉस्मेटिक सर्जरी में कि आप हमारे जो भी बनावट में किसी भी तरह के शरीर में कमी हो गई है, उसको आप सुंदर बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि चेहरे की अभी बताया राइनोप्लास्टी, नाक की या कान की, या लेडीजों में ब्रेस्ट के कुछ छोटे बड़े होते हैं तो उसकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी वगैरह करते हैं। और कुछ एक्सीडेंट में जैसे कि कभी कभी पैरों की हड्डियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और उनकी काटने की नौबत आती है, उसमें भी हमारे प्लास्टिक सर्जन लोग बहुत ही अच्छी सर्जरी करके क्रॉस लेग फ्लैप लगा के और उस पैर की नसों के खून का दौरान फिर से चालू कर देते हैं, जिससे वो व्यक्ति जीवन भर अपाहिज होने से बच जाता है। तो इसलिए इस फील्ड में बहुत ही प्रोग्रेस हुआ है और हम चाहते हैं कि इसी तरह इस फील्ड में आगे आप लोग बढ़ते उन्नति करते रहें। और जैसा कि अभी मोहित जैन जी ने बताया कि अपना इलाहाबाद में पहला स्किन बैंक बनने जा रहा है, इसके लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे बढ़ जाए और लोग बाहर से भी यहाँ पर सर्जरी कराने आते रहें। हम बस यही कहेंगे कि इसी तरह आप लोग बढ़ाते रहें, हमारे देश को, समाज को अच्छा उत्थान देते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजकिशोर अग्रवाल जी। हमें निश्चित यही कामना करना चाहिए कि हर व्यक्ति कहे कि हमारा प्रदेश उत्तम हो, संपूर्ण भारतवर्ष हमारा राष्ट्र आगे जाए। यही हमारी उन्नति का कारण है। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति समुन्नत और स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना से परिपूर्ण हो। और मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि इस दिशा में निरंतर हम लोग अग्रसर हैं। और आज देख रहे हैं कि हमारे माननीय डॉक्टर कुलकर्णी जी आज भी इस अवस्था में निरंतर लेखन, अध्ययन और मनन और चिंतन के साथ साथ में प्रबोधन करके हमारे लोगों का जो मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे महर्षि के साथ जुड़ करके मुझे पूरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से आरोग्य भारती की जो संकल्पना है स्वस्थ राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत की, उसमें हम निश्चित रूप से सफलीभूत होंगे। मैं बहुत बहुत नमन करता हूं आपको पुनः। और मैं अवनीश जी, अब हमारी शांति चौधरी मैडम, जो कि निरंतर पीड़ित मानवता के लिए समर्पित व्यक्तित्व की धनी है, आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं आदरणीय कुलकर्णी साहब को बताना चाहता हूं कि आपने एक हमारी डायरेक्टरी बनाई है डॉक्टर्स की, चाहे वो आयुर्वेद का डॉक्टर हो, एलोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी, एलोपैथी, सारे डॉक्टर्स का एक अपनी डायरेक्टरी तैयार किया हुआ है, जो कि जन सामान्य के लिए उपलब्ध है। हर व्यक्ति किसी भी क्षण किसी भी डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकता है।
आप MLN मेडिकल कॉलेज में शोध अधिकारी रही, आपने तमाम पुस्तकों का सृजन भी किया है और किशोरी, विशेष रूप से किशोरियों के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के संदर्भ में आपने बहुत अच्छे लेखन कार्य किया है और आप निरंतर जो है पीड़ित मानवता के लिए समर्पित हैं और प्रचार प्रसार ही नहीं, लोगों को आज भी कोई परेशानी होती है तो शांति मैम के रिटायरमेंट के बाद भी आपको खोज करके मेडिकल कॉलेज में ले जाते हैं कि हमको सुविधा मिलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से एक ऐसी कार्यकर्त्री के रूप में, समर्पित कार्यकर्त्री के रूप में आप काम कर रही हो और आप हमारे आरोग्य भारती से जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि बहन शांति चौधरी जी को आप आमंत्रित करें कि वो आकर के अपने अनुभव का यहाँ पर दें। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि ऐसे आचार्य कुलकर्णी जी, मोहित जैन जी, राजकिशोर अग्रवाल जी, सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर गुप्ता जी जो कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपने कहा कुलकर्णी जी ने कि केवल क्षार सूत्र और जलौका कर्म और आपके अग्निकर्म तक ही आपको सीमित नहीं रखना है, आपको सभी इस प्रकार की सर्जरीज को आयुर्वेद में ला करके पुनः स्थापित करना है। यही हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी, डॉक्टर शांति चौधरी मैम को आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें डॉक्टर शांति चौधरी मैम को सबसे अंत में बुलाने का मेरा एक उद्देश्य यही होता है कि मैम जितने भी हमारे पूर्व के वक्ता रहते हैं सभी की बातों को बड़े ध्यान से सुनती हैं और समराइज करती हैं मैम, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर शांति चौधरी मैम से कि मैम आए और अपने विचारों से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। डॉक्टर शांति चौधरी मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम अनम्यूट कर लीजिएगा। आप अनम्यूट कर लिए मैम, अपने आप को अनम्यूट। जी जी। इस प्लास्टिक सर्जन दिवस पे सबसे पहले तो मैं महर्षि सुश्रुत को नमन करना चाहूंगी, जो हमारे पहले प्लास्टिक सर्जन ही नहीं रहे बल्कि वो कहा जाए तो पूरे चिकित्सा के जनक के रूप में हम सबके बीच हैं। और 6वीं शताब्दी में उन्होंने जो ग्रंथ लिख दिया, जो प्लास्टिक सर्जरी और बाकी सामान्य सर्जरी के लिए जिन उपकरणों का वो प्रयोग करते थे, जिन चिकित्सा के सिद्धांतों को उन्होंने प्रतिपादित किया, उनका आज भी इस्तेमाल हो रहा है। वो उपकरण आज भी किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। मैं विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर GS तोमर जी का आभार ज्ञापन करना चाहूंगी, जो हर बार इतने विद्वानों को सुनने का हमें अवसर प्रदान करते हैं। सचिव डॉक्टर अवनीश पांडे जी, जो इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम का संचालन करते हैं, आपका पहले तो बहुत आभारी इसलिए भी क्योंकि आज आपके माध्यम से डॉक्टर राघवेंद्र कुलकर्णी जी को सुनने का हमें अवसर मिला, बहुत ज्ञानार्जन हुआ। मोहित जी ने, डॉक्टर मोहित ने बहुत बातें बताई प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। मैं कुछ उन चीजों पे प्रकाश डालना चाहूंगी जो हमारे प्रयागराज में जो प्लास्टिक सर्जरी, इतनी एडवांस प्लास्टिक सर्जरी पिछले सालों से, 30 साल से तो हम खुद ही देख रहे हैं, 3 दशक से होती आ रही है। एक जो बहुत यहाँ की चर्चित सर्जरी है, हमारे यहाँ के प्लास्टिक सर्जन ने एक प्रेस पे काम करने वाला जो कटर नहीं था, वो किसी दिन आवश्यकता पड़ने पे पेपर्स काटने लगा और उसने अपनी गलती से अपनी दोनों हथेलियां काट ली थी और वो हथेली अलग हो गई थी। उसको हम प्लास्टिक सर्जन के पास ले गए, उन्होंने इसको जोड़ा ही नहीं, जोड़ना ही एक काम नहीं होता है, उसमें गति प्रदान करना, उसमें संवेदना प्रदान करना, ये एक प्लास्टिक सर्जन का सबसे बड़ा जो उनकी कोशिश होती है वो ये होती है। उन्होंने सिर्फ जोड़ा ही नहीं हथेलियों को, बल्कि उन हथेलियों में से एक हथेली तो जो दाहिने हाथ की थी उसका पहले ऑपरेशन किया और उसमें उसको उन्होंने उसी पहले की तरह ही उन्होंने गतिशील बना दिया उसे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी में क्योंकि समय ज्यादा लग गया था, शायद अगर 2 सर्जन अगर करते साथ मिलके तो शायद ये नहीं होता। और अब ये सुविधाएं आ गई हैं इलाहाबाद में कि काफी सारे हमारे प्लास्टिक सर्जन एक साथ हैं जो एक साथ इस तरीके से सर्जरीज को संपादित कर सकते हैं और ज्यादा सफल सर्जरी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए तो ये प्लास्टिक सर्जरी एक तरह से
कहा जाए तो वरदान स्वरूप है। कुछ उदाहरण आपको बताना चाहूंगी। एक बिटिया रानी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन उनकी सास को सिर्फ अपनी बहू से यही शिकायत थी कि उनके चेहरे पे तिल बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर मोहित जैन के पास में ले गई। उन्होंने कहा कि पहले समझाया कि तिल तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आत्मग्लानि होती है, मेरी सास मेरा मजाक बनाती है इस बात को लेके। तो मैंने कहा नहीं, मैंने भी बहुत इनको समझाने की कोशिश की है, आप हटा ही दीजिए तिल, इनके कुछ हटा दीजिए। तो उन्होंने सिंगल सिटिंग में ही उसके तिल, कई सारे तिल गायब कर दिए। तो ये काफी बड़ी उपलब्धि हुई बेटी लोगों के लिए, जो हमारे सफेद दाग से पीड़ित, जो खासतौर से जो महिलाएं हैं वो कुंठाग्रस्त हो जाती हैं, कई बार विवाह में बड़ी दिक्कत पैदा होती है। तो ऐसे लोगों को, किसी लड़की के पलक में अगर सफेद दाग था या चेहरे पे कहीं दाग था, तो उसको हमारे प्लास्टिक सर्जन ने बहुत अच्छी तरह से प्लास्टिक सर्जरी करके उसको दूर, बहुत बड़ी उपलब्धि है एक तरह की। इसी तरह एक लड़की की शादी होनी थी, लेकिन उसके चेहरे पे कटे का निशान था, तो लेजर सर्जरी, अब इतने कमाल के प्लास्टिक सर्जन हमारे लेजर सर्जरी से वो उस पर दाग, एक ही सिंगल सेटिंग में दाग मतलब गायब हो गया, और उसकी बहुत अच्छी जगह उसका विवाह हो गया उस लड़की का, सिर्फ उस कटे दाग की वजह से, कटे निशान की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा था। इसी तरह से जो दुर्घटना मरीज हैं, उन दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को किस तरह से प्लास्टिक सर्जन हमारे नई गति प्रदान करते हैं, ये वास्तव में बहुत सी प्रशंसनीय है, सराहनीय है। एक लड़की थी, उसके हेड इंजरी हुई, बहुत भयानक दुर्घटनाग्रस्त हुई वो, और इतनी भयानक हेड इंजरी कि हमने अपने जीवन में नहीं देखा ऐसा, कि पूरा उसका भेजा बाहर, और हमारे यहाँ के न्यूरो सर्जन ने सब ठीक कर दिया। लेकिन उसके बाद उस बच्ची की एक आंख बड़ी, एक आंख छोटी हो गई थी, उसके अलावा माथा, धंसा हुआ माथा था, तो इस वजह से भी उसकी शादी में दिक्कत होती। तो हमारे प्लास्टिक सर्जन ने उसमें टीम में सबसे सीनियर तो डॉक्टर मोहित जैन थे। ये हमारी मेडिकल कॉलेज की ही बात बता रही हूँ आपको, कि उन्होंने कुछ सेटिंग्स में मैंने निवेदन करके कहा कि इसको किसी तरह से भैया बिल्कुल ठीक कर दीजिए आप, और उन्होंने उसके दोनों आंखों को एक बराबर कर दिया। तो धंसा हुआ माथा था, वो कुछ सेटिंग लगी, लेकिन उसका वो पूर्ववत उसका चेहरा हो गया। और बाकी सर्जन्स का भी कमाल था, जिन्होंने उसे नया जीवन प्रदान किया, और आज वो विवाह हो गया है, बहुत खुश है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो किस तरह से समाज में इनका जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो हमारे सर्जन का योगदान है, वो किस तरह से इस तरह की चीजों को दूर कर रहे हैं विकृतियों को, ये बहुत ही कमाल की बात है। और ये हमारे प्लास्टिक सर्जन ने है, डॉक्टर सर्जन डॉक्टर राजकिशोर जी ने, और डॉक्टर कुलकर्णी ने भी बताया, डॉक्टर शिवजी गुप्ता जी ने भी बताया कि प्लास्टिक सर्जरी को लोग सोचते हैं सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, नाक टेढ़ी सीधी कर देना, राइनोप्लास्टी, वही सिर्फ नाक की सर्जरी ही, सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी में जरूरत है कॉस्मेटिक की भी, सौंदर्यीकरण के लिए की जाने के लिए भी, और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या हुआ कि पुनर्निर्माण, जो कैंसर की जो महिलाएं हैं जिनके स्तन कैंसर के बाद स्तन निकाल दिए जाते हैं, आप सोचिए कितनी कुंठाग्रस्त जीवन हो जाता है उनका, लेकिन उनको उनका जो साइकोसेमेटिक उन पे जो इफेक्ट आता है, उसको भी हमारे सर्जन्स नए स्तन बना के और उनको वो नया रूप प्रदान करके उनके इस कुंठा को दूर कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके अलावा लाइपोसक्शन, ये भी हमारे प्लास्टिक सर्जन ही कर रहे हैं, लाइपोसक्शन जो फैट को मशीन के द्वारा कम कर देते हैं, वो भी एक बड़ी भारी उपलब्धि है। उसके अलावा प्लास्टिक सर्जन हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जो आजकल एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है, लोगों का हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो वो भी कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे इसी शहर में बहुत सारे लोगों को ये सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है।
जबकि कहा जाए कि प्लास्टिक सर्जरी की सभी ब्रांचेज में बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है। हमारे सारे जितने भी विद्वान वक्ता थे, सबने एक बात जरूर कही कि हमारे जनक कौन थे, वो आयुर्वेद के थे, तो महर्षि सुश्रुत। तो लेकिन उन्होंने जो संधान प्रतिपादित किए उनको आज भी हम लोग मान रहे हैं। तो आज जो जरूरत है वो होलिस्टिक मेडिसिन की जरूरत है, होलिस्टिक समग्र चिकित्सा की जरूरत है, जिसमें हमारा आयुर्वेद भी आता है, जिसमें हमारा एलोपैथी भी आता है। कोई भी चिकित्सा पद्धति अलग नहीं है और अपने आप में संपूर्ण नहीं कही जा सकती। तो हमको आज जरूरत है समग्र चिकित्सा की, और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी इस बात को बहुत जोर दे रहे हैं, और उसमें डॉक्टर तोमर जैसे चिकित्सकों का बहुत बड़ा योगदान है, जो मंच प्रदान करते हैं। आयुर्वेद के भी जो डॉक्टर्स को जोड़ते हैं वो तो आयुर्वेद के हैं ही, लेकिन साथ में वो जनरल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, मेडिसिन के ऑन्कोलॉजिस्ट को, सबको जो भी विषय होते हैं उस विषय विशेषज्ञों की टीम में वो एलोपैथी के भी डॉक्टर्स को सुनने का मौका देते हैं और जोड़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मंच है। डॉक्टर तोमर को बारंबार प्रणाम। आप ऐसे ही सतत आप सक्रिय रहे और इसी तरह चिकित्सा जगत को आगे विकसित करते रहे, अपना योगदान देते रहे। सभी श्रोताओं को हमारा नमन, सभी विद्वजनों को हमारा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शांति चौधरी मैम। मैं आदरणीय कुलकर्णी साहब को बताना चाहूंगा, आप तो स्वयं तमाम भारतीय भागों को पढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण में 4 संजीवनी के स्थान पर 4 औषधियों का उल्लेख आया है सर। पहली औषधि है विशल्यकरणी। इफ एनी फॉरेन बॉडी एंटर्स इन द बॉडी, just after application of the medicine, foreign body comes out. That medicine was known as Vishalyakarni. Such type of medicine are still available in Ayurvedic Ayurvedic medicines. And second medicine was Sandhanakarni. This Sandhanakarni was a healing promoter. If you apply the particular medicine on the wound itself, so it will be fast healing is there within 24 hours. Fast healing will be there. जैसा कि युद्ध क्षेत्र में लोग सैनिक घायल होते थे, उनको वो दवाई लगाने के बाद में दूसरे दिन युद्ध में जाने के लिए तैयार कर दिया जाता था। तो इट वाज संधान करनी। एंड थर्ड मेडिसिन वाज सवर्ण करनी। ये सवर्ण करनी बहुत बड़ी मेडिसिन थी, जो कि होमोलोगस स्किन, कोई बिना स्कार बने हुए सामान्य त्वचा को कर देना वुंड हीलिंग के बाद, ये सवर्ण करने वाली मेडिसिन थी, जो कि प्लास्टिक सर्जन हमारे काम करते हैं, सवर्ण करने वाला काम होता है। और चौथी मेडिसिन थी मृत संजीवनी। अगर इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर सस्पेंडेड एनिमेशन या किसी प्रकार की मृत्यु जैसी स्थिति पैदा होती है, तो उस मेडिसिन के प्रयोग से पुनर्जीवन देने की संभावना इस मेडिसिन से आती थी। तो वाल्मीकि रामायण में 4 औषधियों का उल्लेख है संजीवनी के परिप्रेक्ष्य में, जो कि हमारे रामचरितमानस में केवल संजीवनी का नाम आया है। तो ये बड़ा रिच हेरिटेज है। और आयुर्वेद में सर जो है सुश्रुत संहिता में लिखा है, यंत्र शतमेकोत्तरम अत्र हस्तमेव प्रधानतम यंत्राणाम अवगच्छ। 101 यंत्रों का उल्लेख आया है, जिसमें हाथ को सर्वोत्तम यंत्र बताया गया है, और 20 प्रकार के शस्त्रों का उल्लेख आया है। तत्र चतुर्विंशति स्वास्थ्य यंत्राणि द्वयैव स्वतंत्र विंशति नाड्या अष्टाविंशति शलाका पंचविंशति उपेन्द्राणि चेति। इस प्रकार से सर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो आज करके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर्जिकल, वो मूलतः उसी सिद्धांत को लेकर बने हुए हैं। परिमार्जन के बाद उनको नया जरूर कर दिया गया है, लेकिन सिद्धांत मूलतः वही है। छेदन, भेदन, आहरण, विश्रावण, सीवन, सारे कर्म जो है सल्ली के हैं। नथिंग कैन बी एडेड इन द बेसिक फिलोसफी ऑफ द सर्जरी गिवन बाय द सुश्रुत। तो हम बड़े गौरवशाली हैं कि हमारा अतीत बड़ा गौरवशाली है, और आप जैसे मनीषी के उपदेश से मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत दिन दूर नहीं, जब आयुर्वेद की यही ज्ञान दीप संपूर्ण विश्व को आप्लावित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने अपने उद्बोधन से एक पीड़ित मानवता के लिए जो उपदेश किया है, वो निश्चित रूप से लोगों के लिए ग्राह्य होगा और उपयोगी होगा, और हमारे आरोग्य भारती का मूल सिद्धांत है, जिस सिद्धांत से हम लोग चल रहे हैं, स्वस्थ राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत, हम सफल होंगे। डॉक्टर अवनीश जी,
आगे धन्यवाद ज्ञापन करने के बाद हमारी परंपरा के हिसाब से शांति मंत्र का कार्य करें और अपने बात रखें। डॉक्टर अवनीश पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन में आज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के दिन हम लोगों ने पिछले वर्ष भी आज के दिन कार्यक्रम आयोजित किया था और आज भी ये सौभाग्य है कि आचार्य सुश्रुत को हम लोग याद कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण दिन पे। और हमारे समस्त वक्ताओं का जिन्होंने अपने विचार रखे, विशेष रूप से हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर राघवेंद्र कुलकर्णी सर का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने विचार हम सभी के बीच में रखे, हम सभी का मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ प्रोफेसर जी.एस. तोमर सर का, हमेशा आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता रहता है। डॉक्टर मोहित जैन सर का आपका भी मार्गदर्शन मिला, साथ ही साथ डॉक्टर शिवजी गुप्ता सर, आपने अपने विचार रखे। डॉक्टर आर.के. अग्रवाल सर, डॉक्टर शांति चौधरी मैम, जो लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़े, डॉक्टर अतुल वाषण्य सर, डॉक्टर ज्वाला प्रसाद सर, और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ डॉक्टर शशिकांत राय वैद्य, एस.के. राय बॉस प्रयागराज से, जो कि आरोग्य भारती प्रयाग के विभाग संयोजक भी हैं। आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े। डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल मैम, डॉक्टर सुदीप तिवारी जी, डॉक्टर एम.डी. दुबे सर, जो कि विश्व आयुर्वेद परिषद से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आपका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर अजय मिश्रा सर, डॉक्टर विकास जी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। ऐसे जो भी नाम मैं देख पा रहा हूँ, जिनका नाम छूट रहा है, जो लोग भी इस कार्यक्रम को फेसबुक पे देख रहे हैं, डॉक्टर के सिंह सर देख रहे हैं, डॉक्टर प्रमोद मिश्रा सर जुड़े हुए हैं, और विशेष रूप से डॉक्टर हरिओम कोहली सर, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है। और एबीसी फाउंडेशन का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं मैं। और मैं निवेदन करूंगा बहन दीप्ति योगेश्वर जी से, शायद ड्राइव भी कर रही हैं, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, शांति पाठ के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। बहन दीप्ति योगेश्वर जी। बहुत धन्यवाद सर। सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। और शांति पाठ के लिए रीढ़ को सीधा करके बैठ जाएंगे, दोनों हथेली को घुटनों पर आकाश की दिशा में खुली और आंखें बंद। 3 ओंकार के बाद शांति पाठ। ओंकार के लिए श्वास भरे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। धीरे से आंखों को खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को मेरा प्रणाम। हाँ, आशा है भविष्य में भी आपके उद्बोधन से हम लोग लाभान्वित होते रहेंगे और ज्ञान का ये दीपक जो जल रहा है कोरोना कालखंड में, हमने आरोग्य भारती के मन से 325 से अधिक व्याख्यान लोगों के व्याख्यान कराए और मुझे इतनी प्रसन्नता है कि आज विभिन्न देशों से लोगों के मेल आते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद की क्या परिकल्पना है इस संदर्भ में। तो मैं चाहता हूं कि पुनः हम इसी प्रकार से आपके आशीर्वाद लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हम लोगों को समय देने के लिए। सर प्रणाम। मैं बहुत भाग्यशाली आरोग्य भारती का कार्यक्रम आज मेरे इस फाउंडेशन पर हो रहा है और मैं चाहूंगा कि आगे भी मुझे सेवा का मौका देता रहे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ। प्रणाम सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी सभी को प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सभी।